And let me begin the class with a couple of practice questions. Meanwhile, others will join. A very simple question I'm giving. Find out the answer for this. Ankit, let others join, then I'll discuss that question. Okay. Try these two questions. Go ahead. Giving you 2 minutes. Make it fast. Pretty easy. Okay, your time starts now. So Raj has joined the conversation. Raj, mark your presence, mark your attendance. Mehul, mark your attendance. Anvesha, right present. Present means you can see the screen, and this is the classwork. Solve this particular question. 50 seconds more. Ankita, mark your attendance, right present. All right. All right, this is a pretty easy question I just gave because people had not joined so far. F of x is given as this. They're asking the value of f of minus 1. Then f of minus 1 is nothing but 2 into minus 1 square minus 2 into minus 1. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ minus 1. Right? So कितना हो जाएगा? This is 2. This is plus 5. 2 plus 1 is 5. That's very easy. Next, I think this one. F of t is given. They are asking f of a square. The answer will be 3 times of a square minus 1. Next, let's come to this question. Okay. Now, please understand one thing. This particular question. Suppose, these people will write something like f of 1 of x. यहाँ पर नीचे में 1 लिखते हैं. Suppose that's equal to x plus 5. और कभी कभी f पावर में 1 लिखेंगे. So they are two different things. पावर में अगर 2 है या तो नीचे में अगर 2 है. So this is different from this one. And I explain you the difference. First of all, just giving you 1 minute, think about this question. The time starts now. Find the value of f6 of 2. Just think about this. Ankita, you are there in the class. Mark your attendance.
All right, Ankit has got it. Others? All right. Okay, your time is up. So I can see Ankit has got the answer as 16. No one else? Raj, Mehul? चलो देखते हैं ये क्या है actually. Now, if you see what is given, that it is f2 of 2, that's equal to 4. Here n, generally if nothing is given, n is actually integers, okay, and generally positive integer. तो n का वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे जाएगा. मतलब कि if you put n is equals to 1, you will actually get f2 of x is equals to f1 of x plus 3. I hope you understand the meaning. Now suppose you put f n equal to 2, so you will get f3 of x, that's equal to f2 of x plus 3. जहां जहां n है वहां वहां 2 आ जाएगा, राइट? अब देखो, अगर दे आर आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f6 of 2, that means इस फंक्शन का इनपुट वैल्यू इज, ओके, हैव आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग? या दैट्स फाइन. इस फंक्शन का इनपुट वैल्यू 2 है, राइट? दैट मींस दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन x के जगह 2. तो यहां पर भी x2 अगर कर दोगे तो यहां पर भी x2 हो जाएगा, नॉट अ बिग डील. नाउ इन ऑर्डर टू रीच f6 of 2, ये देखो हमेशा डिक्रीजिंग फैशन में, इधर 3 आएगा तो इधर 2, यानी अगर f6 of 2 चाहिए, इसका मतलब आपके पास होना चाहिए f5 of 2 plus 3. डिक्रीजिंग है, जैसे कि 6 है तो ये 5 आएगा. तो आई थिंक इसको निकालने के लिए f5 of 3 की जगह 5 of 2 को आप लिख सकते हो, मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूं, f4 of 2 plus 3, और ये वाला प्लस 3 कॉमन हो जाएगा. ध्यान से देखो, मुझे जो गिवन है उसको यूज करने के लिए मुझे इसको फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड लाइक दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग. सो f4 जब होगा तो f4 को क्या लिखोगे, f3 of 2 plus 3, और ये वाला जो ब्लू कलर वाला 3 है वो कॉपी हो जाएगा एंड बाहर वाला 3 कॉपी हो जाएगा. बट अगेन f3 of 2 को आप क्या लिखोगे, f2 of 2 plus 3. I hope you understand. Just a moment, hang कर गया. लिखो f2 of 2 plus 3. All right. So इस f3 of 2 को लिखोगे f2 of 2 plus 3, और प्लस ये वाला 3, फिर ये वाला 3, and फिर ये वाला 3. I'll give you a shortcut also, but as of now understand the approach. And this value is given as 4. So write down 4 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. I think Ankit is correct, and the answer is इतना 4 × 12 × 16 ना, answer is 60. Everybody understands? इसका शॉर्टकट मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखो. या इधर ब्लू कलर में देखो ध्यान से. सपोज दे आर आस्किंग f6 of 2, आपको दिया हुआ है f2 of 2, एंड आप देख रहे हो कि एवरी टाइम एक आइटम रिड्यूस होता है, जैसे कि 3 बनता है 2, 4 बनता है 3, 3 बनता है 2. इसका मतलब 6 लाने के लिए 6 से पहले आप 5 में जाओगे, 5 से फिर 4 में, 4 से फिर 3 में, 3 से फिर 2 में, and every time it will give birth to 1 3 extra constant. This will be another 3, here it will be another 3, and here this will be another 3. So आपका 12 तो आ जाएगा, plus the value of f2 of 2.
So 4 3s are 12. 12 plus 4 is 16. Understood the shortcut? Right? Understood. Everybody. मतलब कि आपको F6 से F2 जाने के लिए 4 स्टेप डाउन होना पड़ेगा. 4 स्टेप डाउन. And each step that you go down, जैसे कि F2 of 2 से F1 of 2 एक 3 कांस्टेंट आता है. तो 4 स्टेप डाउन जाओगे तो 4 3s are 12 कांस्टेंट टर्म्स आएगा. तो F2 का भी वैल्यू इसमें फिर जाकर के हम ऐड कर देंगे. आंसर विल बी 16. Ankit, is that okay? Is this the way you did it? मैंने यार सर वो क्या किया ना, वो ऑब्जर्वेशन कर लिया था. मतलब ये जो आपने इस सेट किया है ना, F3 + 2 + 3 + 2, आप पता है जनरल ऑब्जर्वेशन करेक्ट. अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ F20 of 2, देखो ये भी आसान हो जाएगा. कोई मुझे बता सकता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F20 of 2? तो देखो F20 of 2, फ्रॉम 20 आई हैव टू गो, आई मीन फ्रॉम 2 आई हैव टू गो टू 20. यहाँ पर 4 स्टेप था, यहाँ पर 18 स्टेप होगा. एंड ईच स्टेप इज विल गिव यू 3 यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट. सो 54 आएगा. 54 में +4 F2 का वैल्यू 58 आएगा. ठीक है. इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज many a times questions come of this kind. I will show you one CAT question also in this line. First of all, write copied. Everybody write copied. Yes, जल्दी अन्वेषा जल्दी रिप्लाई करो. हाँ चलो अब आ जाओ. एक क्वेश्चन मैं आपको कैट का दिखा रहा हूं. मैंने देखा था, जस्ट चेक इट आउट. दिस वन. ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं. गिविंग यू 1 minute. Try this question. CAT 2005 का है. It is based on, I'm giving you a small hint, it is based on that reducing function. Okay, your time is up. Now, see here. Has anybody got the answer? No answer in the chat box. That's fine. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को समझो. As I have already given you the hint कि it is based on reducing function, you should understand what is exactly a reducing function here. इधर देखो g of x plus 1 plus, I'll do it very slowly. Please try to understand this question. ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एनी रियल x. Then what is the value of p in the relation gx plus p कि उसका वैल्यू हो जाए g of x. मतलब कि अगर आप ऑप्शन से जाओ तो शायद आंसर 5 अगर है तो आंसर होगा gx plus 5 का वैल्यू g of x. अगर 3 आंसर है तो इसका ये एक्चुअली ये कहना चाह रहा है ना, p का वैल्यू निकाल रहा है. So +3 is equals to x, g of x. In the like manner, g of 2, x plus 2, g of x plus 6. तो कहने का मतलब है, if you see this one, x plus 3 is being reduced to g of x. Now, in this particular thing, you have to rearrange this one.
if you rearrange it will appear like एक x plus 1 है, वो क्या हुआ, g of x minus g of x minus 1 में आ गया। मैं क्या करूंगा, x फॉर एवरी रियल बोला है ना, तो मैं x का वैल्यू 0 ले लूंगा। अंकित ध्यान से समझना, अगर x का वैल्यू 0 है तो ये फंक्शन क्या होगा, देखो जब कभी भी g of 1 निकालने जाओगे तो वो g of 0 माइनस g of माइनस 1 के बराबर है। मतलब अगर आप नंबर लाइन में देखो ना, -1 0 1 1, ये वाला और ये वाला रिड्यूसिंग, मतलब 1 से एक स्टेप नीचे 0, 0 से एक स्टेप नीचे -1। तो बाय सिमेट्री अगर x इज इक्वल टू 0 हुआ, ये +1 है। अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज g ऑफ 2, तो क्या बोलोगे आप, g ऑफ 1 माइनस g ऑफ 0। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस यस। अब देखो कि g of 1, what is g of 1 in the previous, g of 0 minus g of -1 minus g of 0, तो ये तो कट जाएगा, यानी g of 2 जो होगा g of -1 का माइनस के बराबर है। मुझे एक्चुअली चाहिए g of x plus p दैट्स इक्वल टू g of x, और मैंने x का वैल्यू 0 ले रखा है। इसका मतलब मुझे चाहिए g ऑफ कौन सा वैल्यू p हो कि वो g ऑफ 0 के बराबर हो। तो आई थिंक g ऑफ p का वैल्यू 2 नहीं होगा। क्यों भाई, अगर g ऑफ 2 माइनस g ऑफ -1 के बराबर है, g ऑफ 0 नहीं है, यानी g ऑफ 2 नहीं होगा, यानी 2 ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट मान लो g ऑफ, कोई मुझसे पूछता है g ऑफ 5, क्या लिखूंगा जी मैं, g ऑफ 4 माइनस g ऑफ 3। अब g ऑफ 4 को क्या लिखोगे, g minus 2 g of 3 माइनस g of 2, और ये कॉपी कर दोगे g of 3, ये वाला कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस g of 2। अब g of 2 को क्या लिखोगे, g of 1 माइनस g of 0। ये g of 5 g of 0 के बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि g of 1 बच जा रहा है। तो मैं अब क्या ट्राई करूंगा, मान लो g of 6 अगर मैं ट्राई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, g of 5 माइनस g of 4, ध्यान से देखना, एंड g of 5 को क्या लिखोगे, g of 4 माइनस g of 3, एंड ये माइनस g of 4, g of 4 कट जाएगा। अब माइनस g of 3 है, इसको क्या लिखोगे, g of 2 माइनस g of 1, एंड g of 2 को क्या लिखोगे, g of 1 माइनस g of 0 माइनस g of 1, ये वाला कट जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब g of 0 के बराबर। इसका मतलब कि g of 6 जो होगा वो g of 0 के बराबर होगा। मुझे क्या चाहिए था, g of कितना, g of कितना will be equal to g of 0, then I have got g of 6 as equal to g of 0, so my answer will be this. I know some of you might be thinking कि सर ये वाला तो थोड़ा टफ है। हाँ जी, ये टफ क्वेश्चन में आता है। So let me know if you understood, you want me to repeat. मैंने x is equals to 0 ले लिया, उससे एक देखा कि ये रिड्यूसिंग क्या है, 1 से 0, 0 से -1, तो ये एक पैटर्न चल रहा है। अगर आप बुक्स के थ्रू जाओगे तो in that they will give you a lot of expression in terms of x. I have simplified it keeping x equal to 0 because it is true for all real x. कहने का मतलब है कि आप ऑप्शन से देखना कि G5 निकाल लेना, G3, मैंने G2 निकाला, नहीं हुआ तो 2 नहीं होगा, फिर आप G3 निकाल लेना, नहीं होगा, G5 निकालोगे नहीं होगा, G6 में आपका लास्ट में छोटा करते करते G0 आ जाएगा। Those who did not understand this part, I am repeating it.
देखो g ऑफ 5 के जगह मैंने लिखा है g ऑफ 4 माइनस g ऑफ 3, येलो कलर, और यू नो ये g ऑफ ग्रीन कलर वाले को कॉपी कर दिया था, तब g ऑफ 4 कट गया। अब ये है माइनस g ऑफ 3, माइनस g ऑफ 3, इस ग्रीन कलर को मैंने लिखा है g ऑफ 2 माइनस g ऑफ 1, 3 से 2, 2 से 1, पैटर्न समझ में आ रहा है, 3 से 2, 2 से 1, ऐसा तो आप लिख रहे हो हमेशा। अब g ऑफ 2 क्या होगा, 2 से 1, 1 से 0, तो ये वाला जो है येलो कलर में g ऑफ 2, ये मैंने लिखा है g ऑफ 1 माइनस g ऑफ 0, एंड ये g ऑफ 1 कॉपी मार दिया, g ऑफ 1 कट गया, आई एम गेटिंग माइनस ऑफ माइनस g ऑफ 0 which is g of 0. So this is satisfying for p equal to 6. So my answer is p equal to 6. So this reducing function is an important one. You will come across a lot of questions in this line. आगे बढ़े, हिंदी में लिखो आगे, AAGE. एक्चुअली क्या होता है कि मैं ना चैट बॉक्स देखता रहता हूँ तो टाइम नहीं देखता हूँ, तो जैसे कि पहले आपने लिख दिया अंडरस्टूड, अब अगली बार फिर लिखोगे ना अंडरस्टूड तो समझ में नहीं आएगी पहला वाला अंडरस्टूड कि दोबारा वाला अंडरस्टूड, इसलिए आई ट्राई टू आस्क पीपल कि हर बार कुछ अलग अलग लिखा करो, तो मैं जो बोलूँ वही लिखा करो, इट इज ईजी फॉर मी टू यू नो अंडरस्टैंड। चलो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, start now, 1.5 minutes, the time starts now. Anvesha, are you able to follow? All right, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, fx का वैल्यू दिया हुआ है this, and you're supposed, and it is given that f2 plus f3 is equals to f5, find the value of k. The easiest question of its kind, just for you to feel good. Not feel good, but in non-CAT exams, such easy questions are asked on functions. I've given you 1 minute, please, yeah, everybody get the answer for this. थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए मैंने बहुत टाइम दे दिया है। Okay, your time is up. Your time is up. Any answer? No? I think pretty easy. Equation ही बनेगा, k का वैल्यू निकालना, f of 2 क्या हो जाएगा, 2 into 8, 8 to the 16 minus k by 2 plus 2 4 plus f of 3, 27 into 2, I mean 3 cube, no, 27 into 2, 54 minus k by 5, that's equal to f of 5, 125 into 2, 250 minus k by 7. You need to solve this to match the answer. Okay, anybody? Answer is minus 2928 by 43. Yes, sir. अच्छा, तो थोड़ा सा ऐसा वैल्यू आ रहा था इसलिए बोलने में हिचक हो रहा था। नहीं सर, गर्मी लग रही है। हाँ आज सर बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा, हाँ यार आज इधर भी बहुत गर्मी है, जो इवन आई हैव स्विच्ड ऑन माय एसी ओनली, क्योंकि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
Giving you 1 minute. Your time starts now. Very easy one. They are asking, I mean this condition is given. Oh sorry, +4 यहाँ तक है ना. F1 का वैल्यू 0 है, आपको F5 का वैल्यू निकालना है. है सर. कितना आ रहा है? 18 आ रहा है सर. ठीक से देखो. Disha, are you able to follow the class? Very good. चलो, your time is up. Let us see. People, again ये क्वेश्चन कुछ रिड्यूसिंग जैसा, रिड्यूसिंग फंक्शन जैसा है. देखो मतलब कि f n plus 1 is given as 2 times of f of n plus some 4. Now ये कब आया होगा जी? f1 कब आया होगा? at n is equals to 0. So at n is equals to 0, you will get f of 1, because this is true for all n. So f1 जो है 2 times of f0 plus 4 है. एक से एक नीचे 0. तो बाय सिमेट्री अगर आप देखो f5 का जो वैल्यू होगा वो 2 टाइम्स ऑफ एक कम, जैसे n plus 1 एक कम है ना n, तो 2 टाइम्स ऑफ f of 4 plus that 4. ध्यान से समझना. अभिषेक, यू देयर इन द क्लास? ऑलराइट. अब देखो ये जो ओके अंकित, I'll just color change कर. Oh, Ankita, I think is getting correct. All right, very good Ankita. So F4, अगर आप देखो F4 को आप क्या लिख सकते हो? मैं कलर इसलिए यूज कर रहा हूं because you will not be able to understand otherwise. अब ये पर्पल कलर में मैं F4 का वैल्यू लिखूंगा, तो 2 टाइम्स ऑफ F3 प्लस 4, एक कम, और ये ब्राउन कलर में ये 4 कॉमन कॉपी हो जाएगा. अभी भी मेरा F3 नहीं है, मेरा पास F1 है. तो अगेन मैं ये 2 रहने दूंगा और मैं पर्पल कलर में ये F3 को हटाऊंगा. इसको मैं रेड कलर में कर रहा हूं. F3 का वैल्यू मैं लिखूंगा रेड कलर में. F3 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ F2 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला 4 कॉमन प्लस दैट 4. एक पैटर्न है अगर आप समझो. फिर भी नेक्स्ट देखो F2 क्या होगा? ये 2 है, फिर ये 2 है, फिर ये 2 है. अब F2 का वैल्यू क्या लिखोगे? F1 प्लस 4, एंड ये वाला 4, फिर ये वाला 4, एंड लास्ट में आएगा ये वाला 4. एंड व्हाट इज F1? 0. So what is 0 plus 4? 4. What is 4 to the 8? What is 8 to the 16? 16 plus 8, 24. 24, I mean एक ब्रैकेट छूट गया शायद. या ठीक है, ठीक है. F1 का वैल्यू 0 हो गया ना, तो 0 plus 4, 4 to the 8, ठीक है. And then 8 will be multiplied by 2, 16. 16 plus 4,
16 प्लस 8 24, ये लास्ट में 4 है। ओके, आई थिंक ये वाला इस तरीके से लिखने में ना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं यहीं पे f2 2 टाइम्स ऑफ f1 प्लस 4, और f1 का वैल्यू, अच्छा यहाँ पर डायरेक्टली 0 पुट करते चलो, है ना। अगर इसको पूरे एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखोगे ना तो ये लंबा जाएगा और मिस्टेक, जैसे कि मेरा भी मिस्टेक हो गया, तो डोंट डू दिस वे। यहाँ पर f1 का वैल्यू निकाल लो। व्हाट इज f1? 2 into 0, सॉरी f0 is not known actually, f2 निकल सकता है। तो what is f2? 2 into 0 plus 4, that is 4। अब यहाँ से निकाल लो f3, 2 into f2 plus 4, so 2 into f2 का वैल्यू 4, so 4 to 8 plus 4, so 8 plus 4 is 12। ठीक है, यहाँ से f4 निकाल लो, 2 into f3 plus 4, तो क्या हो जाएगा? 2 into f3 का वैल्यू 12 plus 4, so 12 to the 24, 24 plus 4 is 28। सिमिलरली लास्ट में f5 क्या होगा जी? f5 is equals to 2 into f4 plus 4, so 2 into 28 plus 4, so 56 plus 4 is 60। I think that's how you guys did it, and the answer is 60, right? Got it if you have understood. Actually, when I was trying to explain how it works, it was not necessary to write it functions के फॉर्म में। तो आप ना डायरेक्ट वैल्यूज लिखा करो, जैसे कि यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर दिया तो शॉर्ट हो गया। चलो, that's good, everybody has got it, answer is 60। चलो आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। fx is this, find the value of f of 1 plus f of 2 dot 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 till f of 20। These are very important kinds which I am discussing, so be patient, and even if you are not able to get the answer, take these as examples from my side, then with little bit more practice this function will be a very scoring topic। Your time starts now, giving you 1 minute। Mehul, are you able to follow? Kindly respond in the chat box। Yes sir, got it। कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, you are really there in the class? I should understand that। सर बन गया है सर। कितना आ रहा है? नहीं मतलब एक फॉर्म के थ्रू आया है, तो मतलब 3 को कॉमन लेंगे 1 स्क्वायर से 220 स्क्वायर तक एक सम निकलेगा, -2 को कॉमन लेंगे तो 1 to 20 का सम निकलेगा। अच्छा, दैट्स फाइन। जैसे देखो कि f of 1 क्या होगा, 3 of 1 का स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कर दिया क्या? हाँ 5 नहीं मतलब इस टाइप से करने का कोशिश किया था, लेकिन इस टाइप से कुछ हो नहीं रहा है सर। ओके ओके ओके, देखो मैं आपको हेल्प करूंगा। इसको ना अभी सॉल्व मत करना, दिशा, अंकिता ध्यान दो, अन्वेषा, जब कभी भी इस टाइप से समेशन वाला क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा पैटर्न चलेगा कुछ, इसको सॉल्व करोगे तो शायद ना काम नहीं बनता है। आप, मैं आपको उसको वो भी करके दिखाऊंगा। इसको ना एज इट इज रहने दो, स्केलेटन फॉर्म, फिर से एक बार स्केलेटल फॉर्म में ही रहने दो। जैसे कि नेक्स्ट दे आर आस्किंग f2, राज देखो इधर, f2 होगा तो 3 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 4। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, अगर लास्ट वाला में आ जाओ तो f20 क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ 20 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 20 प्लस 4। अग्री?
अंकित समझ में आया? अब देखो, अगर मुझे ये वाला ऐड करना है, सारा लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना है, इसका मतलब मुझे राइट हैंड साइड में कॉलम वाइज ऐड करना है। ध्यान से समझो, इसका ये मतलब कि अगर मैं ये येलो वाला पार्ट को देखूं, मतलब समझ रहे हो, ये फर्स्ट कॉलम को ही अगर मैं देखूं तो 3 कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा, और ये चलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 कहां तक जी, 20 का स्क्वायर। अग्री? फिर से देखो, अब ये ऑरेंज वाला पार्ट देखना, इसको कॉलम वाइज हम ऐड करेंगे। अगर हम इसको कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो माइनस कॉमन रहेगा, 2 भी कॉमन हो जाएगा, और 1 से लेकर के 20 तक ऐड होगा। एंड लास्ट में जो ये जो 4 है, ये जो 4 है, कितना 4 है जी, 1 से लेके 20, मतलब 24 है। तो 24 का मतलब क्या, 4 इंटू 20, आई होप यू अग्री। 80 हो ना, 4, अगर 2 4 होता है तो 4 इंटू 2 होता है 8, 3 4 होगा तो 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 इंटू 3 होगा, 24 है तो 4 इंटू 20 होगा। अब मुझे फॉर्मूला याद है जी, मैंने आप लोग को बता रखा है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल 20 स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, याद है, बाई 6। तो ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, आप लोग मुझे आंसर अभी तक नहीं बताए हो, वेरी सैड। 3 इंटू इसका क्या हो जाएगा, 20 इंटू 21 इंटू 2n प्लस 1 मतलब 41 बाई 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 20 इंटू 21 बाई 2 प्लस 80। होप यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू सॉल्व इट एनी मोर, टेल मी द आंसर। सर यही वाला फॉर्म बोल रहा था, सब चीज को कॉमन लेके। हाँ सही बात है, अब समझ में है, क्लियर हो रहा है पिक्चर? हाँ सर। वेरी गुड। आंसर जी, जल्दी जल्दी। राज क्या कर रहा है, आंसर दे भाई, इसका रिजल्ट इतना मैंने कर दिया है, इसके आगे 100 आप कितना आ रहा है, क्या कितना आ रहा है, 8270 आएगा, लिख लो आंसर। 8270 या 8070? 8270। ठीक है। हाँ। बट यार इतने देर में तो आप लोग का आ जाना चाहिए, क्या करता है लड़का लोग। सर 1 स्क्वायर से 20 स्क्वायर का वो वाला फॉर्मूला भूल गया था, बाकी पूरा आ गया था। अंकित, भूलना भूलना मतलब कि गिरना, बेसिक फॉर्मूला भूलोगे तो इतना अच्छा क्वेश्चन तुमने बना दिया फिर भी लास्ट में अटक जाओगे। फॉर्मूला एकदम फिंगर टिप्स में होना चाहिए, ठीक है। एनीवे ज़्यादा फॉर्मूला कैट रूट में क्या है, या तो एनी एप्टीट्यूड में ज़्यादा फॉर्मूला है ही नहीं, इट्स बट बेसिक एबीसीडीज ऑफ मैथ्स आपको याद रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, your time starts now. If fx comma y is equals to x power of y plus y power of x, what can be the value of a plus b if f of a comma b is equal to 17 and a and b are the integers? Your time starts now, 1 minute. थ्री स्क्वायर 2 क्यूब मतलब 3 और
3/2. Ankit, what about others? 3/2 A equal to 3 या B equal to 3, A equal to 2 या B equal to 2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। All right, time is up. अभिषेक, ध्यान से देखो इसको। Suppose they are giving f of x comma y का वैल्यू x पावर ऑफ y प्लस y पावर ऑफ x। ध्यान से देखो। Now they are also giving the value of f of a comma b. So what is the meaning of f of a comma b by the definition of the function? Function क्या कहता है? जहां जहां x है वहां वहां a, मतलब a, और जहां जहां y है वहां वहां b, मतलब ये पावर b प्लस b पावर ऑफ a. This is equals to 70. They are asking you what is the value of a plus b. अंकित, सिर्फ a प्लस b बोला है, a और b अलग से नहीं बोला है, तो you can just add that, right? 5 हो जाएगा। बस बस, हाँ, तो देखो क्वेश्चन में a प्लस। Now a and b are integers. अब देखो जी, इसको सॉल्व करने का differential calculus and stuffs like that can be actually thought of to actually get the value of a and b, but those things are not in our syllabus. हम लोग उस तरीके से नहीं सोचते हैं. We can go for hit and trial. मतलब इतना करने के बाद आप सोचो कि a और b का कौन सा वैल्यू होगा कि सम मेरा 17 आएगा. अगर 17 आना है, that means both cannot be even क्योंकि odd है. Both cannot be odd क्योंकि odd plus odd even होता है. That means one number will be even and the other number will be odd. एक even होगा, दूसरा odd होगा. ये बहुत ही छोटा है 17. तो मैं a और b का क्या वैल्यू गेस करूं? जनरली ये वैल्यूज होते हैं 1 2 3. सो दीज आर द सैंपल वैल्यूज यू कैन ट्राई. 1 2 3 4 5 छोटे वैल्यू. ऐसा नहीं कि बड़ा नंबर, क्योंकि 5 पावर ऑफ 2 ही कर दोगे तो 25 हो जाएगा. 5 पावर ऑफ 1, 1 पावर ऑफ 5 नहीं होगा. 2 पावर ऑफ 3 एंड 3 पावर ऑफ 2 तो 8. और ये कितना? 9 9 8 17. अरे वाह, आ गया. समझ रहे हो? मतलब कि a को अगर मैं 2 ले लूं या तो b को अगर मैं 3 ले लूं और वाइस वर्सा, और a could be 3 and b could be 2, in any case the a plus b will always be 5, and that's my answer. Right? Got it? If you have understood. Fatafat. If you are a good audience, we can do a lot of questions. आपको घर पे मेहनत आपका मैं कम कर दूंगा. इतने सारे वैरायटीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे. But you have to be a good audience. You have to be good students. Very smart and active. That's wonderful. But I don't have answers from all. I don't have it. Disha got it. What about Raj? Raj है कि नहीं है? Raj is there. Copy it, everyone. Now, okay, just a moment. Before I discuss this, एक टॉपिक लिखो जी. Iterative function. Iterative function. टॉपिक लिखो. Iterative function. फंक्शन आपको मैंने बताया है. कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? जैसे कि f of x था and there was some g of x, then I was asking you fog, gof. तो जब मैं fog पूछता हूं तो इसको हम कहते हैं composite functions, function of some other function. Similarly gof, all these are called composite functions. When I say iterative function, तो जो मैंने f बोला था ना, fof निकालो या तो gog निकालो, gog, then such functions are called iterative functions. मतलब function of the same function. लिखो definition. What is iterative function? Function of the same function. Many a times it is denoted like this.
जैसे कि मान लो f ऑफ x का वैल्यू दे दिया मैंने x+3। अगर मैं लिखूं f ऑफ x, इसको लिखने का दो तरीका। इसको आप लिख सकते हो f ऑफ x, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो f पावर 2 ऑफ x। अंकित समझ में आ रहा है? दिशा, अगर मान लो 3 बार रहा तो इतना बार नहीं लिखने का उसको मन करता है तो वो पावर 3 ऑफ x लिख देता है। तो ये क्या है? इटरेटिव फंक्शन, function of the same function. Let's do an example. Same question. fx is given as x+3. Find out f 4 पावर का वैल्यू क्या होगा? जल्दी, 1 मिनट के अंदर। The time starts now. ये तो इजी है सर, मतलब और कुछ इसका टफर सिचुएशन नहीं है? आएगा आएगा भाई, रुक जा, पहले तो बेसिक समझ ले। क्योंकि अभी और भी कुछ मुझे बातें करनी है। आई हैव गिवन दिस फॉर अदर्स टू प्रैक्टिस कि क्या आएगा। No answer, लिखो done. No need to write down the answer in the chat box. You can write done. Okay. All right. Now, ध्यान से देखो इसको कि f4 of x क्या है? f of fx। इसको लिखने का ये भी तरीका है, f पावर ऑफ 1, f पावर ऑफ 1, f पावर ऑफ 1 ऑफ fx। अंकित, ये जार्गन समझो। एक्चुअली फंक्शन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जिसमें ये लोग इस तरीके से लिखेंगे ना, आपको लगे अरे पता नहीं क्या लिखा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है। वो मतलब ही समझाने के लिए मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है। करेक्ट? चलो, अब ये जो f ऑफ x है इसका वैल्यू कितना? 3 को छोड़ करके ये जो ऑरेंज कलर वाला है उसका वैल्यू है x+3। तो इस फंक्शन में x के जगह क्या रिप्लेस करेंगे? मैंने बताया था x+3। इसका मतलब कि ये जो येलो कलर का है इसका रिजल्ट क्या आएगा जी? ये येलो कलर वाला पोर्शन का रिजल्ट क्या आएगा? रिप्लेसिंग x बाय x+3 विल गिव मी ये और ये येलो कलर का रिजल्ट आ जाएगा x+6। अग्री? इसके x के जगह लिखोगे x+3 और ये वाला 3 कॉपी करोगे तो x+6 होगा। इन द लाइक मैनर x+6 जब यहां पुट करोगे इस येलो कलर वाले का वैल्यू कितना होगा? x+9 बाय सिमेट्री। फिर से x के जगह क्या रिप्लेस करोगे? x+9। सो रिजल्ट क्या आएगा? x+12। राइट? ओके इफ यू हैव अंडरस्टूड। Right? Okay if you have understood. Wonderful. अंकित, ये चीज देखना यार, f पावर 4 ऑफ x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, f पावर 3, यू नो, f पावर 3 f पावर 1 के टर्म्स में, एक्चुअली नॉट 3 ऑल्सो। इधर मैं 1 छोड़ दूं एंड अंदर में f3, एक ही बात हुआ ना? तो इन जनरल लिखो, एवरीबडी प्लीज सी हियर वंस मोर। इटरेटिव फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो इन जनरल लिखो
In general, iterative functions is written like this: f power of n of x is equals to f power of 1 ब्रैकेट के अंदर f पावर ऑफ n माइनस 1 यहां पे x. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. एक रहेगा और एक कम. If you really understood this and you have copied it well, let's do one question on iterative function. Check this out. अच्छा, एक चीज और है राज, देखना यार. मैं बोलता हूं 2 या तो 2 पावर ऑफ 4. अगर पावर 4 रहता है तो मुझे लिखना पड़ता है, मगर अगर पावर 1 है तो मैं क्या बेवकूफ हूं, बार बार ऐसे लिखूंगा? नहीं, राइट? सो 2 is actually 2 power of 1. It is understood. In the like manner, function अगर f of x है, it is actually f1 power 1. दिशा, making sense? अगर function f of x है तो it is actually f power of 1 by default. तो ये लिख करके कोई बड़ा काम नहीं दे रहा मुझे. So if f1x is 3x minus 1 and ये जो लिखा है इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए क्या कि ये एक इटरेटिव फंक्शन का डेफिनेशन दिया है. अग्री? द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ f पावर 5. f पावर 5 नहीं, वैल्यू निकालना है f पावर, जस्ट अ मोमेंट, f पावर 5 ऑफ 1. इसका वैल्यू क्या है? जल्दी. Solving? Just 1 minute. The timer is running. Write done in the chat box if you get the answer. Okay, your time is up. Just a moment. Yeah, done. What about others? What's wrong? कितना आया आंसर? आंसर लिखो. डन आया तो. Ankit is getting 122. How about others? All right. So you know what is this? F power of 5 is nothing but f, 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 and the last one is f of 1. 5 bar. So first of all, you need to find f of 1. So what is f of 1? 3
into 1 minus 1, that is 2. So after f of 1, I think this value is 2. So now you have to find f of 2. This f of 2. So what is f of 2? So 3 2s are 6 minus 1 is 5. So this particular thing is again 5. Now you have to find f of 5. मतलब जो output आया वो वाला input. Making sense? Disha is able to understand. 5 3s are 15 minus 1 14. अब ये जो 14 आया वो इसका इनपुट. अभी तक मैंने एक बार किया है तो ये वाला रिजल्ट आ चुका है. दूसरा किया तो दूसरा फंक्शन खत्म, पहला फंक्शन खत्म, फिर दूसरा फंक्शन खत्म. जब तीसरा किया तो तीसरा फंक्शन खत्म. और जब चौथा करेंगे इसका आउटपुट इसका इनपुट बना देंगे तो f of 14, तो 14 3s are minus 1, 42 minus 1 41, राइट. तो ये वाला ही फंक्शन खत्म. नाउ व्हाट आई विल फाइंड f of 41. So f 41 क्या आएगा? 41 into 3 minus 1, 120, 123 minus 1 122. Wonderful, Ankit, got it. Answer 122. Right? Okay, if you have understood. People understand that ये चीजें थोड़े jargons लगेंगे आपको question exam में, but they are not difficult because this thing is a very basic कि iterative काम करना वाले questions आपके exams में आएंगे. क्योंकि यहीं पर लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई करना कितने बार करना है. तो जब 5 बार रहेगा तो आप 5 ऑपरेशन करोगे, 1 2 3 4 5. राइट? ओके, इफ यू हैव गॉट इट. जल्दी. थके तो नहीं है? होप यू आर नॉट टायर्ड. All right. Moving ahead, I give you a break of 1 minute, or not 1 minute, 2 minutes. Turn your pages, relax, and see if there is anything you want me to repeat. Because function is a little bit rich topic, lot of varieties, and very important topic. You can expect some 3 to 4 questions from functions, sets and stuffs like that. Hope you are turning your pages and checking your notes and seeking for your any doubts, if any. If there are no doubts, everybody has to write no doubt. Then I will begin. Start writing no doubts if you have no doubts.
That's wonderful. All have to write, okay? That means whatever we have discussed in functions so far, no one has any doubt. That's very good. Now let us take some CAT questions. On the screen you have one question. Let fx be a function satisfying fx into fy is equals to fxy for all real x comma y. If f of 2 is equals to 4, then what is the value of f of half? A very common type of question you will observe, and this is one of them. Go ahead, 1 minute starts. Okay, anyone else? Anvesha? Okay, your time is up. Now, understand function in its own existence, it's a very vast topic, okay? But it has been observed that in the exam, the questions which you will get, they will be very aptitude kind based questions. ऐसा नहीं है कि जो क्लास 11 12 या तो ग्रेजुएशन के हाई फंडास वाले क्वेश्चंस आएंगे. जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखो f2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है. दे आर आस्किंग द वैल्यू f half. So how do you think that half will appear? Okay, so in order that half appears, f2 को भी आपको यूज करना है. You can take the value of x to be something, right, and y to be something. Like here you can take x to be 2, so f of 2 into, you can take y to be half. So what you can do कि भाई let x is equals to 2, भाई let x y is equals to half. Will it work? So ये 2 and 2 cancel हो जाएगा. No, half will not work. 2 होगा ना? क्या बोल रहे हो? So f by 2 होगा ना? f of y 2 होना चाहिए ना? ये y का वैल्यू 2. No, I mean 2 into 1, yeah, because no issues. आप ऐसा करो, f of 2 का वैल्यू क्या होगा? x भी 2 y भी 2, ये बोल रहे हो ना? So Yes, f sir. of 2 into f of 2, that's equal to f of 4, and f of 2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 4 into 4 क्या हो जाएगा? 16. एंड f of 2 को यूज करने के लिए अब मैं x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू हाफ कर सकता हूँ. नहीं, नॉट सर डायरेक्ट ये कर देता तो सर हो जाता सर. ये x का वैल्यू आप हाफ पकड़ लो और y का वैल्यू 4 पकड़ लो, फिर y को आप ब्रेक कर दो 2 और 2 में, इजीली कट आउट होके हो जाएगा. करेक्ट, उसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं. एक को 2, एक को 4, राइट. अगर इसको 2 पकड़ेंगे तो f2 का हम हाफ यूज कर पाएंगे, है ना? और इसको 4 पकड़ते हैं.
और इसको हाफ पकड़, है ना। तो ये वाला हो जाएगा 4 इंटू हाफ F2। अब F4 को हम लोग फिर से तोड़ सकते हैं, F4 को F2 इंटू F2 कर देंगे, F2 into F2 and F half is already there and F2, that's fine। एक F2 कट जाएगा तो F half का जो वैल्यू होगा वो 1 by F2 हो जाएगा, that's equal to 1 by 4, करेक्ट। वही सोचना है हमें कि क्या वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे कि हम इसको नेक्स्ट यूज कर पाए जो गिवन रिजल्ट है, क्योंकि इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल x एंड y। Disha, Ankita and a few people got the answer. Those who did not, did you understand? Right, yes sir। x का वैल्यू 4 ले लिया और y का वैल्यू हाफ ले लिया, क्योंकि हमें इसको प्रोडक्ट करना है। 4 इंटू हाफ 2, F2 हो गया। अब F4 जो है 2 और 2 में तोड़ दिया तो एक F2 कट गया तो F2 का वैल्यू हाफ ऑफ F हाफ, ठीक है, that's good। So answer is 1 by 4। चल, अच्छा ये वाला एक क्वेश्चन है बट इसको अभी आप रहने दो, इसको जब हम लोग ग्राफ का क्लास करेंगे तब करेंगे, ठीक है, leave it। Let's take another question। Yes, quadratic आप लोग पढ़े हो, let's take a question on quadratic। Go ahead। 159। अच्छा, प्रीवियस ईयर का बना रखे हो इसलिए। प्रीवियस में आपके होमवर्क में दिया था। ओ यही क्वेश्चन था क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं। आपने वो ऑप्शन नहीं दिया था तो डिफरेंशिएशन से निकालना पड़ा था, वही आपको बोल रहा था। हाँ हाँ, अभी हम लोग इसको देखते हैं विदाउट डिफरेंशिएशन कैसे बनाएंगे, ट्राई करो। ऑप्शन सर इजीली निकल जाएगा, ऑप्शन नहीं दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा। अच्छा तो ट्राई करो, अभी फिर से ऑप्शन वाला ट्राई करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होना चाहिए, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस में काम आएगा। I think the same question he says I had given in the homework. You can also cross check. Okay, your time is up. Now, Raj, ध्यान से देखो इसको। You have studied quadratic with me, I guess. A quadratic function f(x) attains a maximum of 3 at x is equals to 1. So, how does a quadratic function look like? A quadratic function looks like ax square plus bx plus c. The value of the function at x is equals to 0 is 1. मतलब कि f of 0, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, बच जाएगा c, that value is 1. That means c is equals to 1. Yes अंकित? So fx हो गया ax square plus bx plus 1. They are asking the value of f10, मतलब 10 पे कितना होगा। अब आप बोल रहे हो डिफरेंशिएशन कर लिए, दैट्स फाइन, वो भी अच्छी बात है अगर आपको पता है। अदरवाइज मैंने बताया था कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमा विल अकर एट x minus b by 2a। होप यू रिमेंबर, डोंट टेल मी नो सर आई डोंट रिमेंबर, तब तो भाई कुछ नहीं हो सकता। So at x is equals to minus b by 2a मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, और ये x का वैल्यू दे रखा है 1। ध्यान से देखो, इसका मतलब b का वैल्यू होगा -2a। ऑल्सो f of 3, मतलब कि f of 1 एक्चुअली होता है 3, क्योंकि मैक्सिमम विल बी
3 at 1, मतलब कि f of 1 is given as 3. Yes, Disha? So f of 1 is equals to 3. So I think this one can be written as 1 into a, 1 square into a मतलब a, x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 3 and b is already minus 2a, then a minus 2a plus 1 equal to 3. I think a will be equal to minus 2, correct? If a is equals to minus 2, then b will be 4. Agree? अंकिता समझ में आ रहा है आपको? Very good. अगर b 4 है, then what is my quadratic equation? Minus 2x square plus 4x plus 1. यहां पे आपको f10 का वैल्यू निकालना था, x का जगह 10 पुट कर दो, तो minus 2 into 100 plus 40 plus 1, तो minus 200 plus 41, आंसर minus 159. Right? Okay, if you have understood. Everybody. In the same line, allow me to take a question, जो मैंने होमवर्क में दिया था, मैं कर दे रहा हूं आप लोग के लिए, ध्यान से देखो, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो. Yes, I can put it here. Write down this question once more. अगर आपने होमवर्क में लिखा है तो चेक करो, कल वाले होमवर्क में ये क्वेश्चन था. अभिषेक होमवर्क कॉपी किया था कल? f of x and g of x are quadratic equations. f2 equal to g2 equal to 0. f5 g7 equal to 0. f3 का वैल्यू 5 and g4 का वैल्यू 3. g4 का वैल्यू 3 है. Find the value of f8 into g8. Now अभी मैं आपको हाँ क्या बोल रहे हैं अंकित? 135. Oh, okay. That's fine. I had already given you guys enough time to practice. I mean, try this question. Seems many have not. एक चीज जरा ध्यान देखो. Suppose 2, 3 are the roots of a quadratic equation. Don't look at this question. इसकी बात नहीं, मैं अलग से याद दिला रहा हूँ आपको. If 2, 3 are the roots of a quadratic equation, then the quadratic equation is written as x minus 2 multiplied by x minus 3, that's equal to 0. This is the quadratic equation. In the like manner, I can write the quadratic function if the roots are given. Sir, quadratic function मतलब क्या? वो फंक्शन x का होगा, ध्यान से देखना, जो होगा सम k टाइम्स ऑफ x minus 2 into x minus 3 इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे. राज, अंकित देखो इधर, कि जब हम फंक्शन लिखते हैं तो वो सम k टाइम्स ऑफ होगा. अब उसका कांस्टेंट क्या आएगा वो आपको निकालना पड़ सकता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से समझो. गिवन, ये क्वाड्रेटिक क्लास में मैंने बताया था, अगर दो रूट्स दिया हुआ है आई कैन राइट दी इक्वेशन इक्वल टू समथिंग इक्वल टू 0. मगर अगर फंक्शन लिखने की बात आई तो हम लिखेंगे k टाइम्स ऑफ x माइनस फर्स्ट रूट इनटू x माइनस सेकेंड रूट. माइनस हमेशा आएगा. ऑल्सो जब f इक्वल टू 2, मतलब कि मान लो किसी x का वैल्यू 2 पे f ऑफ 2 का वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब 2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. ऑब्वियसली 2 पुट करो, देखो ना, खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा. तो मैंने यही बताया था कि x इक्वल टू 2 पे ये 0 होगा. सही बात है. इन द लाइक मैनर क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रेटिक्स आर आस्क्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी दिस वन.
and then I'll do this question. लिखो, copy it. Ankit, did you do this question this way? Yes, sir. All right. So it seems you know this. Others, those who don't know this, please mark it, very important. A lot of questions have been asked in the previous years on quadratic. I'll give you one more question from the previous year. Now, let us see this question. एक फंक्शन है fx और gx दोनों ही क्वाड्रेटिक है. इसका मतलब fx, सॉरी इसको सोल्यूशन लिखो. fx क्या है? सम k टाइम्स ऑफ x माइन, देखो 2 जो है इस fx का रूट है, तभी तो इस पर 0 आया. 5 जो है इस फंक्शन का रूट है, fx का रूट है, तभी तो इसका वैल्यू 0 आया. सो एक इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है 2 और दूसरा रूट है 5. gx का एक रूट है 2, दूसरा रूट है 7. अग्री? तो fx लिखाएगा k इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 5. वन लाइन. gx क्या लिखाएगा? यहां पर तो k ऑलरेडी यूज कर दिया, तो मैं लिख देता हूं p इंटू कोई कांस्टेंट होना चाहिए, x माइनस ये वाला 2 इंटू x माइनस 7. करेक्ट? ओके. नाउ दीज पीपल आर गिविंग f3 इज इक्वल्स टू 5. मतलब x का वैल्यू 3 पुट करो, f3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? k इंटू 3 माइनस 2 is 1 into 3 minus 5 is minus 2, that's equal to 5. कैलकुलेशन देख लेना. तो जब मैं बोलता रहता हूँ ना, मेरा ये दिमाग रहता है कि मुझे क्या कितने अच्छे से आपको समझाना है, तो छोटे मोटे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं, बट आई एम श्योर दिस इज करेक्ट. You are 5-7 people, so you should be watching out the calculations. Don't watch, but solve it on your own. तब देखो k का वैल्यू हो गया -12, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन k इनकम्प्लीट था, अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटली हो गया. fx इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फंक्शन -5/2 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 5. अग्री? In the like manner, I hope you have got g of 4 is equals to 3. And what is g of 4? x का वैल्यू 4 पुट कर दो. p into 4 minus 2, 2, and 4 minus 7 is minus 3. That's equal to 3. So p will come minus half. So what is my fx? -5/2 x minus 2 into x minus 5. What is my gx? -half into x minus 2 into x minus 7. This fx and this is gx. Now you are supposed to find f8 into g8. निकालो वैल्यू. x का वैल्यू 8 पुट करो, fx f8 निकालो, x का वैल्यू x का वैल्यू 8 पुट करो, g8 निकालो, मल्टीप्लाई करो. टेल मी द रिजल्ट एवरीबॉडी. इतना मैंने कर दिया आप लोगों के लिए, अब आप बताओ. So the target was to actually get the quadratic equation. अंकिता क्या कर रही है? आंसर बता भाई. मैंने इसको समझाने में आपको 4 मिनट लग गया, मगर लोग तो इसको 1 मिनट में बनाएंगे, तो आपको तो सॉल्व कर ही लेना चाहिए अभी तक. सर मैं आपके भरोसे बैठी हूँ सर. अरे सॉल्विंग, जल्दी सॉल्व कर. टेल मी द वैल्यू. अंकित दोबारा बना ले भाई, देख ले कैसे बनाया था. ऐसे ही बनाया था ना? यस सर. वो आंसर 135 आ रहा है. ओके. किसी और का आ जाए. दिशा हैज गॉट 135. वंडरफुल.
I will not proceed if until I get the answers from all. Anvesha, nikalo. That's good. We'll do our last question for today. Previous years का ही ले लेते हैं एक, जो ये वाला हो गया. ये अब मैंने आप लोगों को समझा दिया है, इटरेटिव है. इटरेटिव फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता दिया. जस्ट अच्छा, एक और होमवर्क दिया था, वो वाला तो हो गया नहीं जी. 159 में कितना आंसर था अंकित? -159 -159, वो वाला हो गया. एक क्वेश्चन बनाओ, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे हैं. रिजल्ट मुझे आंसर चाहिए आप लोग का, क्योंकि अब मेरा मन नहीं है सॉल्व करने का. आप लोग मुझे हेल्प करो. क्वेश्चन कॉपी करना. चलो, f1 of x is 2x square minus 5, f2 of x is 2x square minus 5x minus 36. Find the value of x such that f1 of x minus 1 is equals to f2 of x plus 1. Just confidence booster question. Thirty seconds more. अरे नो आंसर, टाइम इज अप. थक गए हो क्या? इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनाओगे यार. थर्ड क्लास हो चुका है फंक्शंस का. ओके, ये जो f1 है ना, f2 है, so this actually simply indicates this is one function, नाम है इसका f1, this is another function, नाम इसका f2 है. बस मतलब जैसे इसका नाम fx हो गया तो इसका नाम gx, ऐसा कुछ. तो x की जगह x minus 1 पुट कर दो. तो what is f1 x minus 1? 2 times of x minus 1 का square minus 5, and that is equals to f2 x plus 1.
एंड व्हाट इज x2 x प्लस 1 मतलब क्या, यहाँ पर x प्लस 1 पुट कर दो। अब ये क्वाड्रेट, ये इक्वेशन आ गया, दिस इज इक्वल टू दिस। ये सॉल्व करना है, कौन करेगा? नहीं सॉल्व करने का मन कर रहा है तो ऑप्शन से जाओ, x का वैल्यू 10 पुट करो, फटाफट कैलकुलेट करो। 2 इंटू 9 12 आ रहा है। अभिषेक 12 आ रहा है, एनीबडी एल्स? You don't wish to solve it. अंकित सॉल्व नहीं किया? अंकिता, अन्वेषा? उल्टा सीधा आ रहा है, किया तो था सर, उल्टा सीधा आ रहा है। सर वही ऑप्शन से करें। हाँ ऑप्शन से ही कर सकते हो। ऑप्शन से ट्राई कर लो। Abhishek is actually getting the right answer, 12. I think you have gone it by option. 12 put कर लो जी। 11, 121, 121 into 2, 242 minus 5, 237. इधर भी 12 पुट करो, 12 plus 1 13, 13 169, 169 into 2, so 170, 340, 340 minus 2 3 38 minus 12 plus 1 13, 13 5 is a 65 minus 3 minus 68. Three 38 minus 65, 13 13 5 is 65, 68. मुझे 12 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या यार? सर कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसीलिए तो नहीं बोल रहा सर। माइनस 8x इक्वल टू माइनस 36 सर है। x इक्वल टू 36/8 मतलब 9/4 तक जा सकते हैं। भाई रुक जा शेर, रुक जा शेर। ये मेरा तो वहां पर स्क्रीन पर वो था ना आपका स्काइप वाला था, ये 6 है, सिर्फ 3 नहीं है, 36 है। अरे मैं यहाँ पर स्क्रीन पे मेरा स्काइप का आपका चैट बॉक्स का था, तो वो हाइड हो गया था, तो मैंने इसको लिखा नहीं। एनीवे माय मिस्टेक, बट इट इज -36। बाकी सब चीज ठीक है। आई थिंक x to 12 विल सेटिस्फाई। अब ठीक है? नहीं आ रहा है सर, मेरा पता नहीं, मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा। 2-3 बार किया सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। ये 237 इधर भी आ रहा है, इधर भी 237 आ रहा है, आंसर करेक्ट है। तो वही है ना कि कैलकुलेशन करने जाओगे क्वाड्रेटिक का परेशानी आएगी, ऑप्शंस में से चले जाओ, ठीक है? All right, that's it for today guys. Have a good day. Thank you so much. Chalo, the class is over. I'm ending the call. Share your notes. I always say, but many don't send. Disha, you send it.